330 थे और जिसमें से 185 ऑयल एंड गैस कंपनीज से हमें प्रॉफिट नहीं, ये हम रुपीस की बात कर रहे हैं, बिलियंस की बात कर रहे हैं. रुपीस, these figures are in billion rupees. डॉलर्स होते तो इधर कुछ और शटर कर रहे होते हम ये बताते हुए. But you know, these numbers are important. अब ये 2020 तक के numbers हैं, but hopefully in another 3 months ये इनका जो unit है वो updated figures ले आएंगे for the more recent years. और इसमें एक जो complication होती है वो ये होती है कि हमें सब companies से data लेना होता है और कुछ companies ने अपनी financial statements भी नहीं दी और complete की होती हैं. Companies, of course, have suffered because of lack of autonomy, external interference, weak management, limited accountability, inappropriate boards, because fit and proper criteria न CEOs का ठीक से होता था, न board की composition का होता है, और इसकी वजह से over the period financial losses होते गए और क्वालिटी भी, सर्विस क्वालिटी डिक्लाइन हो गई है कंपनीज की, और देयर इज़ बीन मैसिव ड्रेन ऑन पब्लिक रिसोर्सेज. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बीइंग द अल्टीमेट ओनर ऑफ दीज एसेट्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेस्क्यूज दीज कंपनीज व्हेन दे आर इन ट्रबल, बिकॉज जो इनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो फाइनली मिनिस्ट्री से तो सेटल हो नहीं पाती. तो ये इस बहुत इम्पॉर्टेंट था कि इनको एक हब में लाया जाए और इनकी एग्रीगेट पिक्चर पता चले और इस हब में मॉनिटरिंग हो, और ये हब इज़ अ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ओन पॉलिसी, और it's a custodian of central monitoring unit. It's a custodian where there will be partnerships and task force that will be established जो कि in ministries को help करेंगे. Our role is that of keeping the accounting of these companies right, publishing it on time, and facilitating the ministries. We are not going to interfere in the day-to-day functioning of these SOEs. But of course, when there are serious issues, the state-owned, ये जो cabinet committee on state-owned enterprises है, it's an institutional mechanism where there will be joint deliberations going forward. तो पहले एक vacuum होता था इस area में. अब ये भी आपको पता है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने टाइम पे काफ़ी SOEs को restructure भी किया, उनको privatize भी किया, professional management भी लेकर आए. But there wasn't a proper framework under which this was happening. And if you read the law, there is a lot of guidance in that. And I will share some highlights of the law, but I will share the highlights of the draft SOE policy. अभी ये हमने approve इसलिए नहीं की है because we inherited the act, और हम इस पे कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा और रिव्यू करके इसको incorporating the comments of all the ministers and stakeholders. But Kamar has already disseminated and solicited views from the public. ये वेबसाइट पे भी हमारे होते थे, मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी किया है, बट चूँकि ये एक नई कैबिनेट थी तो हमने सोचा कि थोड़ा एक राउंड और कर लें, वरना आज ही ये स्टेट ओन पॉलिसी अप्रूव हो जाती. सो वी हैव एक्टेड अ बिट मोर प्रूडेंटली कि हम एक और अपॉर्चुनिटी दें. अच्छा, इसकी ऑफ कोर्स डिकम्पोजिशन आप देखेंगे तो इसमें नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी SOEs में है, बट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द नंबर ऑफ 85 commercial SOEs that can pay us dividends and that can be profitable, and some of them are profitable, as I have pointed out. If you look at the numbers, of course numbers तो बहुत ज़्यादा हैं SOEs के, but that the ones that really matter are power की 20 है, infrastructure की 17 है, mineral, manufacturing, mining, and
enterprises की are another 14, and there is further breakdown, but I'm sure my colleagues can give you more information should you need after this press briefing. अब इसमें बहुत credible organizations हैं जो हमने top 10 profit making की list बनाई हुई है. We will be very happy to share that list with you, और उनकी 2020 का डेटा भी हम आपको दे सकते हैं, और टॉप 10 लॉस मेकिंग भी हैं जिनको हम टर्न अराउंड के उस पर करेंगे या प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे. लेट मी फर्स्ट शेयर विथ यू the highlights of the State-Owned Enterprises Governance and Operation Act 2023, which was promulgated on 2nd February 2023. इसके salient features ही मैं आपको सिर्फ बताऊंगी. एक nomination of independent directors, और मैं आपको अपने experience से बताऊंगी कि once you fix the boards, your job is done, and you give full powers to the board to appoint and make sure. But आपको board अच्छी appoint करनी है, उस पे I will tell you what we are thinking of. और majority of the board members should be independent. That has been the discipline in other jurisdiction. उनका security of tenure होना चाहिए. ये नहीं कि किसी को नाराज़ कर दिया, कोई बात ऐसी कर दी controversial, उसको निकाल दिया गया कि भाई ये हमारे fit and proper से नहीं आया. There are so many excuses that can be provided. और जो office of the chairperson of the board has to be separate from the CEO. और हमारे यहाँ कुछ companies यहाँ पे थी, particularly the statutory organization, जिसमें CEO और जो chairperson of the board was the same person, and I don't think that's good practice. फिर पेपरा रूल्स की एग्जेम्पशन इनको दी गई है, लेकिन पेपरा रूल्स को फॉलो करना इनिशियली टू गेट द रूल्स प्रॉपर, और उसकी एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेपरा रूल्स हैज़ टू बी डन इन एन इफेक्टिव मैनर, और उसकी फिर कैबिनेट अप्रूवल देता है अगर उसकी ज़रूरत हो कैबिनेट की अप्रूवल की. अपॉइंटमेंट्स ऑफ CEOs इज़ वेरी क्रिटिकल, और उस पर काफ़ी नज़रसानी की जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, और पॉलिसी डायरेक्शंस जो देने हैं उसको बड़ा सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन किया जाएगा. उसकी अप्रूवल कैबिनेट से चाहिए होगी. सो नो ad hoc interference in these institutions. Let me just talk about briefly the CMU. CMU will maintain the electronic database of financial and operational performance of SOEs, क्योंकि इस वक्त एक जगह में आपको नहीं मिलता ये ना. You have to, एक तो outdated होता है, takes you long. So also it will conduct the analysis of financial, commercial and operational performance of SOEs, and it will have the ability to submit recommendations to the federal government or to the cabinet committee of SOE. Obviously, it will compile this data on a semi-annual and annual basis, और ये current हम कोशिश करेंगे कि ये CMU रखे. ज़ाहिर है, the custodians of those of this law is people like Kamar, because they are going to be here even when this government goes away. Caretaker government का period ख़त्म हो जाएगा. हमारा काम ये है कि जो काम अच्छा हुआ है उसको हम आगे लेके चलें, ताकि really implementation of the actions that were taken under the previous regimes is continued, जो अच्छे वाले हैं, because we will benefit even in a short time from this. SOEs जो कि that come under the scope of the act will not comply with public sector companies' corporate governance rules of SECP, but SECP is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government shall establish and retain strategic SOEs completely, partially engaged in strategic functions, or essential SOEs जो जहाँ पे private sector service नहीं provide कर सकेगा, वहाँ पे we will try to retain this but lift the game financially and operationally उनके.
Non-strategic SOEs को over the period we should phase out, as I see. Obviously, as we move forward, the institutional arrangements will be more carefully laid out. Thought process is already there. We will have to have a hub of appointments and training of directors for the boards of SOEs. There will be issuance and reporting of guarantees for SOE. आपको पता है, with the health of these SOEs, we have to really do the due diligence of where the guarantees are needed, because these guarantees cost us a lot, and we have the limits on guarantees, as you know, from the IMF program. और पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस को हमने ठीक से मेजर करना है, ठीक से रिकॉर्ड करना है, एंड वी विल हैव पब्लिक सर्विस obligation पे more analytical work done under the rubric of this act and all that. So I just wanted to share this with you. The basic instructions are: no directions will be given to an SOE or a board of SOE by any ministry division to perform any PSO obligation or to bar the SOE from performing any operational function without the approval of the federal government. And obviously I've laid out the institutional mechanism. There's a lot out there. We are happy. हमारा ये website पे है policy paper. आप इसको ज़रूर study करें. And obviously Qamar Saab is available for any Q&A moving forward, and I'm here for a little while, but I do have another meeting. Unfortunately, I was available from 1 to almost 2, but I'm going to sit with you, and if there are questions. Please ये करेंगे सवाल मैंने मुख्तसर काइंडली रखिएगा और अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस करा दें. तो आप राइट से शुरू करते हैं. आप बताइए मेहताब हैदर साहब. मेरा नाम मेहताब है. मैं ये 200 से ज़्यादा SOEs हैं टोटल मेंबर्स हैं, और आज से चंद साल पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलरली एक एनुअल रिपोर्ट इसके बारे में जारी करता था जी. ये 2020 का एक तो फिगर जो है, लेटेस्ट फिगर्स क्यों नहीं अवेलेबल, इस पर कब तक काम हो जाएगा, और दूसरा ये बताएं कि ये लॉसेस में पिछले 3, 4, 5 साल से ये लॉसेस में, वरना पहले ओवरऑल एक एग्रीगेट प्रॉफिट होता था, तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है वो पावर सेक्टर की कंपनीज का. तो इसको आप कैसे जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे? PIA है और ये पावर सेक्टर की कंपनीज, ये कब तक आपका प्लान कब तक है, और कब तक आपने इनको जो है वो या डिस्पोज ऑफ करना है या इनको टर्न अराउंड करना है? जी, thank you for this question. I think let's take few more questions and then we come. जो आपने बताया है एक बर्डन है स्टेट गारंटीज का इन SOEs के लिए, कोई आपने कैलकुलेट किया है कि ये फॉरेन करेंसी में है क्योंकि सारा, तो कितना बर्डन कम किया जाएगा? देखें, अभी तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा तो फिर उस पर ये सारी कैलकुलेशंस होंगी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट डेफिनेटली वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गारंटीज दैट हैव बीन इशूड. अच्छा मैडम, ये जो ये आपने SECP की जो रेगुलेशंस बनी थी ये 2013 में बनी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई उस टाइम से, बट जहाँ पे इम्प्लीमेंट को करने की कोशिश की गई वहाँ पे बोर्ड्स ने जब उनके पास पावर्स आई तो उन्होंने अपनी मर्जी से CEOs लगाए, अपनी मर्जी से सैलरीज लगाई. सुई के जो MDs हैं वो 1-1 करोड़ रुपया सैलरी ले रहे हैं, और सारे स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ा दी गई. और जो बोर्ड्स हैं, अभी एक रिसेंटली एक केस आया LTTC में, बोर्ड ने ही अपने एक बंदे को MD लगा दिया LTTC में, और उन्होंने वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ाई और उन्होंने ठेकों में भी अपनी मनमानी शुरू कर दी. तो ये जो आप ये पावर देना चाह रही हैं, इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी? क्योंकि जो भी आप रूल्स ये लगाते हैं, प्राइवेट सेक्टर आके ज़्यादा बड़ा माफिया बन जाता है गवर्नमेंट एंटिटीज में. आप भी प्लीज़ क्वेश्चन दे दें पहले. जो आपने बात की है स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक SOE, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी कमेटी डिसाइड करेगी स्ट्रेटेजिक कौन सी SOEs है, नॉन स्ट्रेटेजिक है? दूसरा, अभी भी कई इदारे ऐसे हैं जहाँ पर सेक्रेटरीज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और CEOs भी हैं, जिस तरह PTV कॉर्पोरेशन है,
सेक्रेटरीज को वहाँ पे एमडी लगा दिया गया, अब चेयरमैन भी होंगे, और भी कई इदारे हैं जहाँ पर बर रास्त इंटरवेंशन है, सेक्रेटरीज बैठे हैं हर जगह पे, या जेएस बैठे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, और सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये वो एक तो स्ट्रेटेजिक नॉन स्ट्रेटेजिक कौन डिसाइड करेगा कि कौन से इदारे स्ट्रेटेजिक हैं, कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक हैं, क्योंकि माजी में ये हुआ है कि बाद इदारों को सिर्फ एक लाइन कह दिया था स्ट्रेटेजिक है, इसलिए उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। जी टेक मोर क्वेश्चंस फर्स्ट। हाँ, थोड़ा एक और ले लेते हैं ना। चलें, ये 3 यहाँ से ले लेते हैं। ये बता दें, फिर इम्पोर्टेंट है, फिर रह जाते हैं, फिर एक नहीं रहेंगे, लिखा हुआ लिस्ट इट डाउन मैं करें। ये फरमाइएगा कि जो इन इदारों के बहुत सारे इदारे हैं जिनमें हमेशा जब उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ यूनियन या लेबर यूनियन जो है वो बहुत बड़ा इशू है, हार्डल क्रिएट करती हैं। तो जब आप इनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो आपने ये ध्यान रखा है कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा अगर उनको उनको निकालना है इन इदारों से, बाद एम्प्लॉयज़ को या रिटेन करना है, उनका फ्यूचर क्या होगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप भी बता दें। जी, शहबाज अख्तर मैम, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो PIA की आपके बदलने की सूरत इशू PIA, बाकी 2 चीज़ें ऑन एंड ऑफ आपकी चल रही हैं। PIA में अब बात हो रही है उसकी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग, उसके ऊपर आपका अपना क्या व्यू है, अगर ये करेंगे डेट की रिस्ट्रक्चरिंग तो क्या उसका स्टेटस होगा, क्योंकि विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने आपसे कहा कि 13 बिलियन इन बिजनेस एज यूजुअल रफली उनकी मंथली उनकी नीड है। सेकेंडली अगेन वो एक नेशनलिज्म का और एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर उसके किस्म के वो जज्बाती नारे लगवा के आपसे हमेशा पैसे ले जाते हैं। वुड यू ट्रीट द PIA एज जस्ट अ PIA, any company registered under any act of Pakistan, and you will not give money to the PIA, or again you will come under some pressure? I know you would not, but will you come under some pressure and give money to PIA which it is demanding right now? Thank you very much. Thank you, Ji. Okay, now let's take the questions. Let me first, since I've spoken a lot, पहले अगर आप कुछ दे दें और फिर मैं I'll address the remaining. तो एक तो ये है 2013 के जो implementation का था, वो आप बता दें। You can answer any of these and then I'll amplify. तो वो मैडम ने अपनी माइक ऑन कर लीजिए। मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि इस लॉ के आने के बाद और इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंट होने के बाद इन SOEs के ऊपर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल इन्फोर्स नहीं होंगे, इस लॉ के तहत वो काम करेंगे और इस पॉलिसी के तहत। सो वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो CMU है वो असिस्ट करेगा टू द कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट गवर्नमेंट और एक ओवरऑल ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म इन प्लेस होगा जो कि माजी में नहीं है। दैट्स वन थिंग। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए राइट। और दूसरा भी दे दिस वाज द स्पेसिफिक क्वेश्चन। गारंटीज का भी आप बता दें थोड़ा और। जी, You have the गारंटीज का information. इसमें हम ट्रांसपेरेंसी ऐड कर रहे हैं कि गारंटीज का जो डेटा है वो अवेलेबल हो और उसमें क्लैरिटी हो। अच्छा, और दो वंस दिस इज इन प्लेस तो यू बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा आल्सो। सो उसमें कोई ऐसा इबहम नहीं रहेगा। जैसे मैडम ने कहा कि गारंटीज का डेटा इस वक्त भी मौजूद है और आपने जो कहा था कि वो सिर्फ फॉरेक्स की नहीं, फॉरेक्स की वो हमारी ड्यूटी की गारंटीज भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी हैं, लेकिन ओवरऑल मैटर तो वही करता है ये नहीं, दोनों ही मैटर करते हैं हमारे लिए दोनों। अच्छा चलिए, तो सारे क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं, यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंड यू हैव डन फिनोमिनल वर्क। मेरा ये एक उसूल है कि जो काम करता है उसको लीडरशिप दी जाए। सो पहला क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन पे देखिए, द डिसीजन मेकिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन हैज़ ऑलरेडी बीन मेड। देयर इज़ अ लिस्ट of privatization that is available with the Privatization Commission, and this question ought to be directed at the Privatization Commission. अब full time minister Privatization Commission के हैं और ये list has a political backing from the past और उसमें काफ़ी सारी organizations हैं और हमने जो legal mandate दिया गया था इस गवर्नमेंट को, केयर टेकर को, उसमें ये कहा गया था कि वी कुड कंटिन्यू द प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड सम ऑफ दोज एलिमेंट्स आर कवर्ड अंडर एज लॉन्ग एज दीज आर ऑनगोइंग एक्टिव ऑन इन द पाइपलाइन। तो ये काम शुरू हो चुका है फ्रॉम द डे आई वॉज
हैंडलिंग दैट पोर्टफोलियो. बट आपको पता होगा कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है हमेशा एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के पास होता था. इट वाज नॉट